اردو ادب کی وسعتوں میں ایسے کئی نام چمکتے ہیں جنہوں نے اپنے لفظوں کے جادو سے قارئین کے دلوں کو جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان میں سے ایک نام ہے صادقہ نواب سحر کا، ایک ایسی شخصیت جو اپنی منفرد تحریروں کے ذریعے اردو ادب کو ایک نئی سمت دینے میں کامیاب رہی۔ وہ نہ صرف ایک فکشن نگار، ناول نگار، شاعرہ اور ڈرامہ نگار رہی بلکہ ایک کامیاب استاد بھی رہ چکی ہیں۔ صادقہ نواب سحر کی زندگی اور ادبی سفر کسی دلچسپ کہانی کی طرح ہے۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر 18 اپریل 1957 کو آندھرا پردیش کے گنٹور میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والدین خواجہ میاں صاحب سابق صدر انجمن اسلامیہ اور شرف النساء بیگم گنٹور کے رہنے والے تھے۔ آپ کا خاندان ممبئی آیا جب وہ چند ماہ کی تھیں۔ ان کے والد کا ممبئی میں کاروبار تھا۔ یہ ممبئی کا وہ دور تھا جب ہر کسی کی توجہ شہر کی طرف مرکوز تھی۔ آپ کی پرورش ممبئی میں ہی ہوئی۔ آپ کی تعلیم کا آغاز انگریزی اسکول سے ہوا، لیکن بعد میں آپ نے اردو کا رخ کیا اور اس زبان میں مہارت حاصل کی۔ آپ نے نہ صرف اردو بلکہ فارسی کا بھی گہرائی سے مطالعہ کیا۔ محمد اسلم نواب صاحب سے شادی کے بعد صادقہ نواب سحر نے تدریس کا پیشہ اختیار کیا اور مختلف کالجوں میں اردو لیکچرر کے طور پر خدمات انجام دی۔ بعد میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر، ریسرچ گائیڈ و صدر شعبہ ہندی KMC کالج کچوٹی ضلع رائے گڑھ میں لیکچرر کے عہدے پر تقرری ہوئی۔ ان کے لیے تدریس صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ ایک جذبہ تھا۔ وہ اپنے طلبہ کو اردو ادب سے روشناس کرانا چاہتی تھیں اور ان میں ادبی شوق پیدا کرنا چاہتی تھیں۔ صادقہ نواب سحر کی زندگی اور ادبی سفر کا جائزہ ہمیں ان کی شخصیت کی کئی جہتوں سے روشناس کراتا ہے۔ وہ ایک باصلاحیت ادیب، ایک محنتی استاد اور ایک سچے انسان کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ علم کے چراغ کو روشن رکھنے میں صرف کیا ہے۔ وہ نہ صرف ایک استاد ہیں بلکہ ایک محقق، ایک رہنما اور ایک انسان دوست بھی ہیں۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسی لگن اور جذبہ ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ ڈاکٹر صادقہ نے اردو، ہندی اور انگریزی میں MA کیا اور ہندی غزل پر تحقیق کرتے ہوئے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے درس و تدریس کے پیشے کو اپنایا اور اپنی زندگی کا اہم حصہ طلبہ کو علم کی روشنی سے آشنا کرنے میں لگا دیا۔ انہوں نے کئی سالوں تک کالج میں پڑھایا اور PhD کے طلبہ کی رہنمائی کی۔ انہیں پرنسپل بننے کی پیشکش بھی ہوئی، لیکن انہوں نے اسے ٹھکرا دیا کیونکہ وہ تحقیقی کام میں زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ ڈاکٹر صادقہ کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ایک لگن تھی۔ وہ ہمیشہ کچھ نیا سیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کی یہی خواہش انہیں ایک کامیاب استاد بننے میں مددگار ثابت ہوئی۔ وہ اپنے طلبہ کو صرف نصاب پڑھانا ہی نہیں بلکہ انہیں ایک اچھا انسان بننے کی بھی تلقین کرتی تھی۔ ڈاکٹر صادقہ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ وہ مختلف زبانوں میں تحقیق کرنے والے طلبہ کی مدد کرتی۔ ان کے لیے زبان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہم خود بھی ترقی کرتے ہیں۔ آج جب ہم ڈاکٹر صادقہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان کی محنت، لگن اور جذبے پر فخر ہوتا ہے۔ وہ ایک عظیم استاد تھیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر اردو ادب کا ایک ایسا نام ہے جس نے اپنی لگن، محنت اور صلاحیت سے اردو ادب کو نئی جہتیں عطا کی ہیں۔ انہوں نے افسانے، ناول، ڈرامے، شاعری اور بچوں کے ادب سمیت مختلف ادبی اصناف میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔
ان کی تخلیقات میں تنقید اور ترجمے بھی شامل ہیں۔ صادقہ نواب سحر کو بچپن سے ہی لکھنے کا شوق تھا۔ 5ویں جماعت میں انہیں احساس ہوا کہ ان میں اچھی شاعرہ بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان کے والد نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور شادی کے بعد ان کے شوہر نے بھی ان کے ادبی سفر میں ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح ان کا ادبی سفر کامیابی سے جاری ہے۔ صادقہ نواب سحر نے اردو ادب کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مختلف زبانوں کی مقبول تخلیقات کو اردو کے قالب میں ڈھالا ہے۔ ان کی تحریروں کو ملک و بیرون ملک کے تقریباً تمام ہی معیاری ادبی رسائل نے شائع کیا ہے۔ ان کی ادبی شخصیت پر کئی کتابیں اور تحقیقی مقالے لکھے گئے ہیں۔ ان کی کتابوں کے ہندی، انگریزی، تمل اور پنجابی سمیت آدھا درجن سے زائد زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کی ہر کتاب کے ترجمے ہوئے ہیں۔ نام و شہرت کے باوجود صادقہ نواب سحر میں بڑی انکساری ہے۔ لکھنے کے تئیں ان کا جوش کم نہیں ہوا ہے۔ وہ مسلسل نئی تخلیقات پیش کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر اردو ادب کی ایک تابندہ ستارہ ہیں۔ انہوں نے اپنی لگن، محنت اور صلاحیت سے اردو ادب کو نئی جہتیں عطا کی ہیں۔ ان کی تخلیقات کو قارئین نے نہ صرف بہت پسند کیا بلکہ انہوں نے اردو ادب کو بھی ایک نیا رنگ دیا ہے۔ ان کی ادبی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر کی ادبی سفر کی یہ داستان نہ صرف ان کی انفرادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے بلکہ اردو ادب کی ترویج و اشاعت میں ان کے گہرے تعلق کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ ان کی تخلیقات کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ناولوں اور افسانوں کے متعدد زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ ان کی کتابیں اور مضامین ہائی اسکول، جونیئر کالج اور یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہیں۔ ان کی ادبی شخصیت پر متعدد رسالوں نے خصوصی شمارے شائع کیے اور ان کی زندگی اور کام پر تحقیقی مقالے لکھے گئے۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر نے نہ صرف اپنی تخلیقات کے ذریعے بلکہ مختلف ادبی تنظیموں سے وابستہ رہ کر ادبی پروگراموں میں شرکت کر کے اردو ادب کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں متعدد ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر اردو ادب کی ایک منفرد اور متحرک شخصیت ہیں۔ ان کی تخلیقات میں تنوع، گہرائی اور ایک عورت کی آواز کا بے باک اظہار نمایاں ہے۔ ان کا ادبی سفر اتنا وسیع اور گہرا ہے کہ انہیں اردو ادب کا ایک اہم ستون کہا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر نے اپنی تحریروں میں سماجی، سیاسی، نفسیاتی اور انسانی رشتوں جیسے متنوع موضوعات کو شامل کیا ہے۔ انہوں نے خواتین کے مسائل کو بے باکی سے پیش کر کے ایک نایاب رقم کیا ہے۔ ان کی زبان سادہ اور عام فہم ہونے کے باوجود ان کے خیالات گہرے اور معنی خیز ہیں۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر کی تحریروں میں انسانی قدروں کو اہمیت دی گئی ہے۔ وہ سماج میں اصلاح لانے کی خواہش رکھتی ہیں اور اپنی تحریروں کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ معاشرے کے مختلف طبقات اور مسائل کو اپنی تحریروں میں پیش کرتی ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتی ہیں۔ ان کی تخلیقی صلاحیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ نئی باتیں اور خیالات پیش کرتی رہی ہیں جو ان کے تحریروں کو دلچسپ اور پڑھنے میں آسان بناتے ہیں۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر کی زبان سادہ اور عام فہم ہے لیکن ان میں گہرائی اور معنی بھی موجود ہے۔ ان کا اسلوب بہت ہی دلچسپ
اور پڑھنے میں آسان ہیں۔ وہ اپنے خیالات کو اتنی سادگی سے پیش کرتی ہیں کہ پڑھنے والا اس سے جڑ جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف ادبی اصناف پر قلم اٹھایا ہے۔ ان کی کتابوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ ایک کثیر الجہتی ادیبہ ہیں، جنہوں نے اپنے ادبی سفر میں ناول، افسانہ، شاعری، ڈرامہ، بچوں کا ادب اور تنقید جیسی مختلف اصناف پر کام کیا ہے۔ اردو میں انہوں نے متعدد شعری مجموعے، ناول، افسانوی مجموعے اور ڈرامے تحریر کیے ہیں۔ ناول کہانی کوئی سناؤ متاشا 2008، کہانی کوئی سناؤ متاشا ناول 2010، ناول جس دن سے 2016، ناول راج دیو کی آمرائی 2019، افسانوں کا مجموعہ خلش بے نام سی 2013، افسانوں کا مجموعہ پیج ندی کا مشہرہ 2018، ڈرامائی مجموعہ مکھوٹوں کے درمیان 2012، شعری مجموعہ انگاروں کے پھول 1996، شعری مجموعہ سترنگی 2018، شعری مجموعہ باوجود 2018، شعری مجموعہ چھوٹی سی یہ دھرتی 2020، شعری مجموعہ دریا کوئی سویا سا 2021۔ ان تخلیقات میں سماجی مسائل، عورت کی نفسیات، انسانی جذبات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے ہندی ادب میں بھی اہم کام کیا ہے۔ انہوں نے مجروح سلطان پوری کی شاعری کا ہندی میں ترجمہ کیا اور اس پر تحقیقی کام بھی کیا۔ ان کی ہندی کتابوں میں ناول کہانی کوئی سناؤ متاشا 2009، ناول جس دن سے 2017، ناول راج دیو کی امرائی 2023، افسانوی مجموعہ منت 2012، افسانوی مجموعہ شیشے کا دروازہ 2018، شعری مجموعہ پتھروں کا شہر، نظموں کا مجموعہ 2003، شعری مجموعہ پھر کھلے پھول 2019، ڈراموں کا مجموعہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار 2020، ڈراموں کا مجموعہ اور گھنگرو بجتے رہے 2021، ترجمہ و ادارت پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ 2000، مجروح سلطان پوری کی کلیات کا ترجمہ و ادارت ہندی میں، ترجمہ و ادارت لوک پریہ کبھی مجروح سلطان پوری 2002، مجروح سلطان پوری کی غزلوں کا ترجمہ و ادارت ہندی میں، تحقیق ہندی غزل فکر و فن خصوصی جائزہ، تنقیدی مضامین ساہتیہ میں آلوچنا کی چنتا 2012 شامل ہیں۔ ان کے ترجموں میں مجروح سلطان پوری کی شاعری کو ہندی پڑھنے والے قارئین تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے انگریزی میں بھی تحقیقی کام کیا ہے اور غزل اینڈ اوڈ ان کی ایک اہم تحقیقی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے غزل اور اوڈ کی اصناف پر تفصیلی بحث کی ہے۔ دیگر ادبی سرگرمیوں میں آپ نے بچوں کے ادب پر بھی توجہ دی اور بچوں کے لیے کئی کہانیاں، نظمیں لکھیں۔ آپ نے مختلف ادبی مجلوں میں مضامین اور کالم بھی لکھے۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر اب بھی لکھنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کی کئی نئی کتابیں زیر طباعت ہیں۔ ان دنوں صادقہ نواب سحر پر کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ صادقہ نواب سحر شخصیت اور فن فکشن کے تناظر میں مرتبہ پروفیسر تراب علی محمد اسلم نواب 2017۔ روبرو صادقہ نواب سحر کی شخصیت اور فن فکشن کے آئینے میں مرتبہ پروفیسر تراب علی اور محمد اسلم نواب 2021۔ صادقہ نواب سحر شاعری کے تناظر میں مرتبہ حبیب النساء بیگم 2018۔ آپ پر مختلف رسائل نے جو گوشے شائع کیے ہیں وہ اس طرح ہے۔
ماہنامہ 400 راولپنڈی جولائی 2020، ماہنامہ شاعر نمبر مارچ 2017، سہمائی اسباق نمبر اکتوبر 2010 تا مارچ 2011، ایڈیٹر نذیر فتح پوری۔ آپ پر پی ایچ ڈی مقالے بھی لکھے گئے۔ صادقہ نواب سحر بحیثیت فکشن نگار، راشد محمد اقبال خان نگراں کار، ڈاکٹر عبدالرشید منہاس، شعبہ اردو یونیورسٹی آف جموں۔ صادقہ نواب سحر اور دلیپ کور کی فکشن نگاری کا تقابلی مطالعہ، شمیم امبر، پنجاب یونیورسٹی، مالیر کوٹلہ، پنجاب۔ صادقہ نواب سحر کی ناول نگاری کا تفصیلی تنقیدی مطالعہ، ناول کہانی کوئی سناؤ متاشا اور جس دن سے کے حوالے سے، صوفیہ پروین۔ صادقہ نواب سحر کی شخصیت و فن کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، کوثر جہاں۔ صادقہ نواب سحر کی فکشن نگاری کا تحقیقی جائزہ، آسماں شیخ۔ صادقہ نواب سحر کی کردار نگاری، ایک جائزہ فکشن کے حوالے سے، نور جہاں۔ انہوں نے اپنی لازوال تحریروں سے نہ صرف اردو ادب کو نئی جہتیں دیں بلکہ ملک بھر میں ادبی حلقوں میں اپنا ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 2 درجن سے زیادہ ادبی ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر کو مختلف ادبی اداروں نے ان کی فکشن کی کتابوں پر متعدد بار انعامات سے نوازا ہے۔ اتر پردیش اردو اکادمی، مغربی بنگال اردو اکادمی، مہاراشٹر اردو اکادمی اور بہار اردو اکادمی جیسے معتبر اداروں نے ان کی تخلیقات کو سراہا ہے۔ انہیں بھارتی بھاشا پریشد کولکتہ کی جانب سے لیکھک پرکاش سمان، پریم چند ایوارڈ، جینیندر کمار ایوارڈ اور مرکزی ساہتیہ ایوارڈ جیسے اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ سال 2023 میں اردو میں ساہتیہ اکادمی انعام کے لیے ڈاکٹر صادقہ نواب سحر کا نام ان کے ناول راج دیو کی امرائی کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والی وہ دوسری خاتون مصنفہ ہے۔ ان سے پہلے قرۃ العین حیدر کو یہ اعزاز حاصل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر کو متعدد دیگر ادبی اور سماجی اداروں نے بھی ان کی خدمات کے اعتراف میں نوازا ہے۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر کا ادبی سفر صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے۔ انہوں نے اپنی قلم سے نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکہ لاکھوں قارئین کو متاثر کیا۔ ان کی تحریریں صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ایک گہری بصیرت ہیں۔ انہوں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے سماج کے مختلف مسائل پر روشنی ڈالی ہے اور قارئین کو ان مسائل پر غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔ آج جب ہم ڈاکٹر صادقہ نواب سحر کی زندگی اور کام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اردو ادب کی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ان کی تحریریں آئندہ نسلوں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ مدھیہ بھارت ٹائمز اور ماہنامہ الفاظ ہند کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ریحان کوثر کا آداب۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ قلمکار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ سے۔ آج وہ اپنے 2 افسانوں کے ساتھ جو ہے ہمارے درمیان یہاں موجود ہے اس پروگرام میں۔ تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دونوں افسانے اب ہمارے قارئین کو خود پڑھ کر سنائیں۔ مائک جو ہے وہ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر صاحبہ کے حوالے۔ میں ایک شہر کا افسانہ سناؤں گی آپ کو اور ایک گاؤں کا افسانہ سناؤں گی، کیونکہ مہاراشٹر کے میں انٹیریئرز میں آ گئی ہوں، آدھی زندگی بمبئی میں گزری
तो दोनों जिंदगियों से मैं लुत्फानंदोज हुई हूँ और उनको महसूस किया है मैंने। पहला अफसाना है मन्नत। मन्नत अफसाना जो है वो महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके जो है वहाँ का है, बारामती की तरफ का। अफसाने का उन्वान है मन्नत। मुंबई से पंढरपुर जाने वाली टोलियां लेजिम बजाती, नर्म सख्त धूप में सर पर फेटा बांधे, लकड़ी की दिंडी यानी पालकी में विट्ठल की मूर्ति लिए आगे बढ़ी चली जा रही थी। पुणे, बारामती, इंदापुर रोड के रास्ते ये टोली शोलापुर रोड छोड़कर पुणे जिले के आखिरी गांव बावड़ा से आगे बढ़ी। बावड़ा में हॉर्न राव अपनी बहन मुक्ता और माँ शांता, जिसे वो आई कहते थे, को लिए टोली के साथ हो लिया। बावड़ा एक छोटा सा गांव है। यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं। पूरे गांव में कोई 500 घर होंगे। गांव के आसपास खेत हैं जिनमें गेहूं, ज्वार और गन्ने की फसल होती है। ये बहुत शांत गांव है। यहाँ हफ्ते में एक दिन यानी जुम्मे के दिन आठौड़े बाजार यानी हफ्ता बाजार लगता है, जिसमें सब्जियां, खाने पीने की चीजें, किराना, राशन और थोड़ा बहुत कपड़ा फरोख्त होता है। बाकी दिनों में खरीदारी के लिए गांव वालों को अकलुज गांव जाना पड़ता है। यहीं इन लोगों का बड़ा सा घर है। आई मुक्ता के लिए मन्नत करना चाहती थी। आई मुक्ता के लिए मन्नत करना चाहती थी। अगली बार तभी आऊंगी जब मेरी मनौती पूरी होगी। हे विट्ठल पांडुरंग, मेरी लेक यानी बेटी को शादी लायक बना दे। अपने सर पर गमले में तुलसी का पौधा उठाए उन्होंने अकीदत से कहा था। उस वक्त मुक्ता 18 साल की थी। गदराए जिस्म की, तीखे नैन नक्श, दरमियाना कद, खिलता हुआ रंग, शोख रंग चूड़ियों से भरे हुए हाथ, बीच की मांग, 2 चोटियां लाल रिबन से बंधी हुई, बड़े घेर के लहंगे जैसा टखनों तक का परकर और शर्ट जैसा छोटा कुर्ता, माथे पर कुमकुम का टीका। खेत पर बाबा को खाना देने जाती तो गांव के लड़के आहें भरकर देखते। बबन की आंख चल जाती और वो फौरन आंख पकड़कर रगड़ने लगता, क्योंकि रुककर उसे मुक्ता घूरती। शादी करेगी मेरे से? वो पूछता। अपने बाबा को भेजूं? चल भाग जाते हैं। बबन हर बार एक नया फिकरा फेंकता। क्यों? अपने बाबा को भेजता क्यों नहीं रे? खाली बड़बड़ करता है, मेरे बाबा से डरता है क्या? नहीं, तेरे बाबा से नहीं तो अपनी माँ से। तो जाना घर। मुझसे क्यों पूछता है? शादी करेगी क्या मेरे से? अपनी माँ से पूछना। बबन की माँ सर पीट लेती है। क्या कमी है उसमें? लंगड़ी है कि अंधी कानी? बबन चिढ़कर कहता है। वो भी चल जाएगी मगर मुक्ता नहीं। आई तो मुक्ता से जलती है क्या? अब क्या बोलूं रे। मुक्ता भी अपनी दूसरी बहनों की तरह खेलती कूदती बड़ी हुई थी। स्कूल जाने का शौक तीनों ही बहनों में नहीं था। भाई ने तो हिसाब किताब तक की पढ़ाई कर ली थी, सूद पर पैसा देता था। बाप किसान थे। एक एक करके दोनों बहनें जवान हो गई। मुक्ता वैसी ही रही। कितने कितने डॉक्टरों वेदों को बताया, कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने मुंबई के बड़े जनाना बीमारियों के डॉक्टर का नाम सुझाया, मगर शहर जाकर इलाज कैसे करवाएं? वहां कोई ऐसा भी तो नहीं जिसके पास जाकर कुछ दिन रह सकें। बात धरी रह गई। दवाइयों का फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मुक्ता का जिस्म जरूर फूल गया था। वो उम्र से बड़ी लगने लगी थी। छोटी बहनें एक के बाद दूसरी 16 साल की हुई और ब्याह करके विदा कर दी गई। लड़कों की माओ ने उन्हें सख्ती से मना कर रखा था कि मुक्ता को नजर उठाकर न देखें, मगर नजरों पर किसका बस चला है। उनकी अपनी नजरें भी उस पर थी। दौलतमंद घराने की लड़की जो थी, बहुत मिलेगा। बबन की माँ को भी यही लालच मुक्ता की माँ के पास ले गई, मगर शांताबाई ने समझा कर भेज दिया। बाद में दुख उठाने से अच्छा है शादी ही ना करें। लड़की हम पर बोझ नहीं है, मुक्ता की माँ ने कहा। कैसी चहकती थी मुक्ता बचपन में। सब बहनों से तेज थी, वो बाप की लाडली। अब वो एक तरह से खुश था कि बेटी उसके पास रहेगी। बेटे का क्या है, ब्याह तक अपना। मगर कभी कभी उसका दिल भी कचौके लगाता। काश सब कुछ ठीक होता। छोटी बहनों की शादियों के बाद मुक्ता कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी थी। घर में भाभी आ चुकी थी। सभी के 3-4 बच्चे थे। भाभी के साथ किचन में चकचक रहने लगी तो माँ ने कहा, तू गाय भैंस देख ले। मुक्ता बड़ी सफाई पसंद थी। अपने हाथों से तवेले की सफाई करती, गाय भैंसों को नहलाती, उन्हें चारा देती, दूध दोहती। उसे पानी बहुत अच्छा लगता था। बार बार हाथ साफ करती, अपने बर्तन खुद धोकर रखती, गेहूं जवार वगैरह साफ करती, मगर चूल्हे के पास नहीं फटकती थी। जल्दी जल्दी विली यानी पाँव दराती पर सब्जियां काट कर रख जाती। कभी कभी वो अपने बर्तनों के साथ साथ सारे बर्तन भी धो डालती, मगर जब मूड नहीं होता तो कहने पर भी नहीं कह देती, नहीं करूंगी। मुक्ता की 3 सहेलियां बिन ब्याही थी।
फुर्सत में उनसे गप्पे लड़ाती, मगर शीला, फिर माया, फिर रेखा, तीनों सहेलियां मुश्किल से ही सही ब्याह दी गईं और कुछ दिनों में अपनी गृहस्थियों में कुछ ऐसे उलझी कि मिलना मिलाना तक मुश्किल हो गया। मुक्ता को चुप्पी लग गई। अज्जी यानी दादी के पास बैठी रहती, गाय भैंसों का काम करना भी छोड़ दिया। खाना लग जाता तो दादी के साथ रसोई में आ जाती और दादी की तरह ही सीधे हांडियों से बर्तन में खाना लेकर बैठती, दोबारा ना लेती। भाभी नाराजगी से देखती कि खाना बनाने में तो नहीं आई, लेकिन परोसने भी नहीं देती, खुद लेगी। हूँ, दादी सास के डर से वो कुछ बोलती नहीं थी, फिर उसे भी उसकी आदत हो गई। खाने के बाद दादी मुक्ता को लेकर चली जाती। माँ मिट्टी के चूल्हे पर पानी गर्म करती, कपड़े हमाम में लगाती और आवाज देती, मुक्ता। मुक्ता आती और गर्म पानी की बाल्टी उठाकर हमाम में चली जाती। उम्र के साथ साथ मुक्ता में एक खास किस्म की जिद आ गई थी, या फिर अकेलेपन की ख्वाहिश। दादी की मौत के बाद तो वो तन्हाई पसंद हो गई थी। बस दहलीज पर बैठी दरवाजे की तरफ देखकर खुद से बातें करती रहती। कोई बात बार बार बड़बड़ाती भी और फिर अपने आप से कहती, चुप बैठ, थप्पड़ मारूं क्या। वो अपने आप से कहती। वो दिन में कभी सोती न थी, बैठी रहती या घर में घूमती रहती। खाना भी वो जरा सा खाने लगी थी। घर में सब्जी आती तो साफ करने जरूर बैठ जाती। बहनें मायके लौटते हुए उसके पैर पड़ती तो वो कहती, मुझे पूना आना है। चलो ना मौसी, भांजे भांजी बुलाते। नहीं, बाद में। वो डर जाती। किसी की शादी में या किसी काज में जबरदस्ती ले जाते तो घबरा जाती। यहाँ क्यों आए? घर से बाहर निकलते हुए डरती थी, भीड़ में हाथ कसकर पकड़ लेती। वो अपनी किसी पसंद का इजहार नहीं करती थी। सवेरे के 9 बजे होंगे। भाभी अलगनी पर कपड़े सुखाकर तह करके लाई और माँ ने मुक्ता के लिए हमाम में कपड़े लगाकर आवाज दी कि वह आकर नहाने का गर्म पानी ले जाए। मेरे कपड़े मुड़ा दिए, मैं नहीं नहाऊंगी। कपड़े मोड़ दिए, कपड़े मुड़ा दिए, मेरे कपड़े। मुक्ता ने हमेशा की तरह हमाम में गर्म पानी रखा था, कपड़े देखे थे और चिल्लाने लगी थी। माँ दौड़ी आई, कपड़े मुड़ा दिए, मेरे कपड़े। आहिस्ता बोल, वही नहीं यानी भाभी को बुरा लगेगा, बेचारी सारा दिन खटती है। मेरे कपड़े। चुप कर बेटा, चुप कर। वहीनी को। शायद भाभी ने सुन लिया था। उसके बाद मुक्ता मुकर्ररा वक्त पर भाभी के हाथ के धुले कपड़े झटक कर डालती और सूखते ही अच्छी तरह तह करके रख देती। एक एक करके न जाने कितने बरस गुजर गए। आज भाई होन राव की बड़ी बेटी के लिए रिश्ते वाले आने वाले थे। माँ बहू की मदद करने में पीछे नहीं रहती, शायद बेटी की भरपाई करती थी। मुक्ता की दादी के मरने के बाद वो किसी भी काम में क्यों न हो, दरमियान में मुक्ता के पास जरूर जा बैठती। आज माँ ने समझा बुझाकर मुक्ता को अंदर उसके कमरे में भेज दिया था, नाश्ता लगाने में मदद की। कुछ देर लड़के वालों के साथ बैठकर पोती को उनके पास बिठाया और बेटी के कमरे में आ गई। मुक्ता आईने में अपना चेहरा बड़े गौर से देख रही थी। माँ ने उसे ध्यान से देखा। उसने अपने सारे गहने पहने हुए थे और अपनी भाभी की शादी का घूंघट सर पर ओढ़े हुए थी। मांग की जगह पर एक छोटा सा सफेद घुंघराले वालों का गुच्छा बिंदिया की तरह झूल रहा था। माँ चुपचाप पलट गई। कमरे के दरवाजे के बाहर आकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। पैर कांपने लगा गिर पड़ेंगी। जमीन पर बैठ गई। सासू माँ, बहू ढूंढती हुई आई। क्या हुआ? अहो सुनो, देखो तो क्या हुआ आई को। इधर से हौनरा, उधर से मुक्ता माँ के पास दौड़े आए। माँ ने मुक्ता को ऊपर से नीचे तक देखा। वो वैसी ही सीधी सादी 6 गज की आम औरतों की पहनने वाली शौक गुलाबी रंग की फूलों वाली साड़ी में लिपटी थी। बदन पर जेवर था ना घूंघट। फिर वो सच था कि ख्याल उनकी कभी जोर पकड़ रही थी। जा खाना खा जा खाना खा कर आ। इस हालत में भी माँ को सिरहाने बैठी टकटकी लगाए अपने को देख रही मुक्ता की फिक्र थी, लेकिन उसने इनकार में सर हिला दिया। डॉक्टर 5 बजे आएगा, शहर गया है। होनराव दौड़कर पता कराया। 1 घंटा है। सासूबाई खुद को संभालिए, बहू ने उनके पैरों की मालिश करते हुए कहा। तूने खाया सुन भाई? उन्होंने बहू को पूछा। हाँ सासू माँ, बहू ने मुक्ता की तरफ देखते हुए कहा। इसका मन ठीक नहीं, ठीक लगेगा तो ले लेगी, हो सके तो बेटी के हाथ से इसे दूध भिजवा दो, माँ ने कहा। मुक्ता ने इंकार में सर हिला दिया तो बोली, ठीक है नहीं लाएगी, तू घबरा मत, मैं तेरे मरने के बाद ही मरूंगी। बिस्तर पर पड़ी तेज बुखार में वो बड़बड़ा रही थी। उनकी हालत देखकर सब रो रहे थे। माँ ठीक हो गई, मगर उनके पैर अकड़ गए, खड़ी नहीं हो पाती थी। घर भर में घिसटती फिरती, लेकिन बहू की मदद करने में बैठे बैठे जो कर सकती करती। पैरों की मजबूरी कम ही आड़े आती। बहू बहुत कहती, बेटी मदद कर देगी। माँ आई, नहीं पढ़ने दो मेरी पोती को, इसकी शादी के दिन दूर नहीं, वो बड़े प्यार से कहती और बहू मुस्कुरा देती। माँ बूढ़ी हो गई थी, बाबा भी लकड़ी टेकते थे।
खेत पर कम जाते, मजदूर किसान घर आकर आंगन में बैठते, हिसाब देते, गप्पे लड़ाते। माँ कितनी बार बीमार हुई उसकी गिनती क्या, हर बार उठ बैठती, हर बार कहती मुक्ता को छोड़कर नहीं मर सकती। कुछ दिनों से मुक्ता ने भी हांडी से खाना लेना छोड़ दिया था, बस चम्मच भर चावल और दाल लेकर बैठ जाती थी। खाना खाकर अपने बर्तन धोकर कोने में रख देती। सिर्फ दोपहर में खाने लगी थी। रात में माँ घिसटती हुई आती और दूध पिला जाती। गदराया बदन धीरे धीरे हड्डियों का हार दिखाई देने लगा। मुक्ता अब 2 दिनों में एक बार खाने लगी थी। उसके बाकी रोजमर्रा के काम बरकरार थे। सुबह के कामों से निपट कर वह अपनी पसंदीदा दहलीज पर जा बैठती। आज बबन ने मुक्ता को 25 साल बाद देखा था। आज बबन ने मुक्ता को 25 साल बाद देखा था। वैसी ही, बिल्कुल वैसी ही सुंदर और मासूम, लाल फूलों की साड़ी, सोने की चूड़ियां, गले में चेन, कानों में मोती के फूल। पहचाना? मैं बबन, पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था। पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था ना, वहीं बस गया था। 25 साल बाद आया हूँ। तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो। उसने अपनी खुशी भरी हंसी दबाई। मुक्ता ने उसे नजर भर के देखा, आंखें मुस्कुराई, फिर शांत और अनजान हो गई। वो अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर अपनी उंगलियां गिनने लगी। बबन वहीं रुक कर उसे एकटक देख रहा था। वो सर खुजाने लगी। पत्नी भी आई है, कल मिलाने लाऊंगा। चल हट। मुक्ता ने पास पड़ा ईंट का टुकड़ा उठाकर फेंका। बबन की पेशानी से खून बहने लगा। साली, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बबन ने कहा। माफ कर बेटा, ये बावली हुई है, तू बुरा मत मानना। मुक्ता की माँ घिसटती हुई आई। अंदर आजा, पट्टी करती हूँ, माथे से खून बह रहा है। काकी, आपके पैरों को क्या हुआ? उन्हें घिसटते देखकर वो अपनी तकलीफ भूल गया था, मगर फिर अचानक पेशानी की चोट से बहते खून और शर्मिंदगी का ख्याल आया और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कहता हुआ जवाब सुने बगैर ही बबन वहां से चला गया। शाम गहरा गई थी। मुक्ता की माँ सिरहाने बैठी, उसे पंखा चल रही थी। सुबह से वो कुछ बोली ना हिली डुली। कई दिनों से उसका खाना बंद था। माँ बेटे को देखकर बोली, मोहन राव देख तो, दीदी ठीक तो है? आई दीदी तो ठंडी हो गई। मोहन राव नाड़ी देखकर बोला, जा बाबा को बता दे। उन्होंने इतनी शांति और बगैर किसी तनाव के मोहन राव से कहा तो वह तड़प कर माँ के गले लग गया। मुक्ता को मरे आज 13 दिन हो गए थे। पूरा गांव खाना खाकर गया था। माँ बुखार से तप रही थी, फिर भी हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रही थी। बहू हाथ से झाड़ू लेने लगी तो प्यार से डांटा, क्या सुख उठाया तूने भी? ये हम बुलाते थे मगर तुझ पर बोझ नहीं डालना था ना, इसलिए मैं नहीं गई। उन्होंने हंसकर बहू को गले लगा लिया। अगली सुबह गांव वालों को फिर उसी घर में जमा होना पड़ा। मुक्ता की मां नहीं रही। पवन पंढरपुर की यात्रा के लिए लकड़ी की डिंडी यानी पालकी में विट्ठल की मूर्ति को सजा रहा था। तू तो उसे पसंद करता था ना, मगर मुक्ता तो तेरे से प्यार करती थी। कैसे मालूम? बबन ने सोचा आज माँ को क्या हो गया है। वो बोली थी मेरे को एक बार, अपने खेत में आई थी पूछने को के बबन की बेचैनी माँ से छुपी नहीं रही कि मेरा क्या दोष है। फिर मैं बोली पूरे रिश्तेदारों को मालूम है तुझे माहवारी नहीं आई, कितनी जड़ी बूटियां हजम कर गई, अब इसमें मेरा क्या दोष? फिर बबन ने पूछा। वो पलट कर जाने लगी थी तो मैंने उसे रोका और बोली, सुन बेटा, किसी को मालूम नहीं होता, या हम दूसरे गांव के होते तो और बात थी। अब लोग पूछेंगे ना कि तेरे बेटे में क्या दोष था कि आंखों देखी मक्खी निगल ली। मुंबई से पंढरपुर जाने वाली टोलियां लेजिम बजाती नर्म सख्त धूप में हमेशा की तरह आज भी सर पर फेंटा बांधे लकड़ी की डिंडी में विट्ठल की मूर्ति को लिए 15 दिनों की जत्रा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही थी। पुणे, बारामती, इंदापुर रोड के रास्ते से ये टोली शोलापुर रोड छोड़कर पुणे जिले के आखिरी गांव बावड़ा के लिए बड़ी है। हर साल बबन की माँ अपने भाई बहनों के साथ आषाढ़ और कार्तिक के महीनों में विट्ठल रुक्माई यानी कृष्ण रुक्मणी के दर्शन करने के लिए पैदल जाती है। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि बावड़ा में अमेरिका रिटर्न बबन राव अपनी आई और बीवी की जिद पर उन्हें लिए टोली के साथ शामिल होने को खड़ा था। कुछ लोग सर पर पीने के पानी की कलसियां और तुलसी का पौधा बड़े अकीदत से उठाए हुए थे। अगली बार तभी आऊंगी जब मेरी मनौती पूरी होगी। बबन की आई अपनी बहू के लिए मन्नत मानना चाहती थी। हे विट्ठल पांडुरंग, मेरी सूंड की गोद भर दे। अपने सर पर गमले में तुलसी का पौधा उठाए
उन्होंने अकीदत से कहा था और वो हरि विट्ठल हरि विट्ठल हरि विट्ठला का जाप करने लग गई। शुक्रिया। मेरे अफसाने का उन्वान है मीटर गिरता है। टाइम क्या हुआ है साहब? टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी का मीटर गिराते हुए पूछा। 3:30। मुसाफिर ने टैक्सी में बैठते हुए जवाब दिया। 3:30? ड्राइवर ने टैक्सी बायकल्ला पुलिस स्टेशन से बाएं ली। बायकल्ला भाजी मार्केट के बाहर खड़े ग्राहक का इंतजार करते या सामान लेते हुए पार्टी वालों में से एक बूढ़ा पार्टी वाला घबरा कर पीछे हटा और टैक्सी की टक्कर से खुद को बचाकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया और अन्ना साहब पाटिल फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे रोड पार करके लव लेन में गायब हो गया। ओ, आज का दिन ही ठीक नहीं है साहब। आधा दिन खराब हो गया। टैक्सी ड्राइवर ने गहरी सांस ली। क्यों? मुसाफिर ने आराम से टैक्सी में फैलते हुए पूछा। क्या साहब, 3:30 बज गए, अभी तक खाना नहीं खाया, उसने टैक्सी का आईना एडजस्ट करते हुए कहा। उसे मुसाफिर एक अधेड़ उम्र का बिजनेसमैन सा दिखाई दिया। आसमानी शर्ट और काली पतलून में उसका खुला हुआ रंग उस पर भला लग रहा था। उसने अपनी घनी भवों और मूछों पर हाथ फेरा, फिर दोनों हाथों से सर के बालों को दुरुस्त किया। सुबह छोकरे को प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर गया। सरकारी में डॉक्टर लोग का हड़ताल चलता है ना, जब ही से साला प्राइवेट डॉक्टर लोग का मजा हो गया है। ये डॉक्टर का फीस 500 रुपया है, पर अपन से 200 रुपया ही लिया। पहचान वाला है ना, जानता है कि अपन टैक्सी ड्राइवर है, जास्ती दे नहीं सकता। बोलता था अच्छा किया पहचान रखा और आया, ऊपर से थैंक यू भी बोला। ड्राइवर ने एक लम्हा अपना सर खुजाया और फिर बोला। वहां से निकला, छोकरे को घर छोड़ा, टैक्सी निकाला, पर ऑफिस टाइम किधर था? अभी वर्ली नाके से भाईकला तक तो एम्प्टी ही आना था। अब जाके भाड़ा मिला है। ड्राइवर ने गहरी सांस ली। डॉक्टर ने 560 रुपए की दवा लिख के दिया है साहब, मगर आज खाली 200 रुपए का कमाई हुआ है। अभी 360 रुपया और बनाने का है, तब जाकर लड़के का दवाई आएगा। ड्राइवर अचानक चुप हो गया। उसने अपनी शर्ट के खीसे से तस्वीर निकालकर दिखाई। मेरा बेटा साहब। अच्छा अच्छा। शायद ही मुसाफिर ने तस्वीर की जानिब ध्यान दिया हो, मगर उसकी दिलचस्पी महसूस करके ड्राइवर को जैसे होश आ गया, जोश आ गया। वो अपनी धुन में ही कहे जा रहा था। साला 16 साल का छोकरा है, 3 दिन से बीमार है, गोली खाता है, कॉलेज को जाता है, कभी गोली खाता है, सो जाता है। साला बोलता नहीं है कि पप्पा मेरे को बुखार है। पहले बोला होता तो 50 रुपए की दवाई में काम चल जाता था ना। अभी 560 रुपए का फटका लगा दिया। क्यों, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? मुसाफिर ने पूछ लिया। डॉक्टर बोला मलेरिया हुआ है। अभी और लेट लाता तो कामिनी का भी चांस था। ये कामिनी क्या होता है साहब? उसने अपने सांवले माथे का पसीना अपनी खाकी शर्ट की आस्तीन से पोंछा तो तेल लगे बालों की एक लट अनजाने में ही उसकी पेशानी पर बिखर गई। जॉन्डिस, पीलिया, काविल। मुसाफिर को ड्राइवर को समझाने में वक्त लगा। अच्छा अच्छा, अपने इधर 2-3 लोग कामिनी पेट में उतर कर मर गया। बहुत बुरा बीमारी है साहब। टैक्सी ड्राइवर चुप हो गया। मुसाफिर भी चुप था। कुछ देर की खामोशी के बाद टैक्सी ड्राइवर फिर शुरू हो गया। साहब कुछ भी बोलो, मुंबई में तो अभी टैक्सी चलाने का मजा नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? मुसाफिर ने यूं ही पूछ लिया। अरे साहब, मुंबई में इतना ट्रैफिक हो गया है कि क्या बोलेगा। मजा बोले तो साला एयरपोर्ट का भाड़ा मारने वाले लोग का है। एयरपोर्ट से वाशी जाता है, एयरपोर्ट से कोलाबा जाता है, हीरो लोग का स्टाइल मारता है। सिटी में तो टैक्सी चलाने का मजा नहीं है साहब। जिंदगी भर टैक्सी चला के भी मुंबई में 1,00,000 रुपए का एक झोपड़ी नहीं ले सकता। बस 2 टाइम का खाना मिल जाता है। ओह। टैक्सी ड्राइवर को लगा जैसे मुसाफिर ने एहसास के साथ ओह कहा हो। आखिर कुछ कम कुछ ज्यादा के फर्क से मुंबई में सबकी यही कहानी है, उसने सोचा। उसे मुसाफिर से हमदर्दी सी महसूस हुई। उसका हौसला बढ़ा और उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया। सुबह 4 बजे उठता हूँ तो रात 11:30 बजे सोता हूँ। ऊपर से बिजली का 2 महीनों का 2,000 रुपए का बिल आया है। कंप्लेंट गया तो बीएसटी वाला बोलता है ड्राइवर साहब पहले बिल भर दो, बाद में इंक्वायरी होएगा। क्या बोलने का साहब, 2,000 किधर से आएगा? नहीं भरा तो बिजली काट देगा।
और नहीं तो क्या, कहकर मुसाफिर खामोश हो गया। मगर ड्राइवर अपनी धुन में कहता रहा, ऐसा ही पानी का कनेक्शन कट गया है। सुबह 4 बजे उठकर म्युनिसिपैलिटी के नल पर पानी भरने जाना पड़ता है। 5 बजे से औरत लोग का टाइम होता है ना, बहुत किट किट चिक चिक करता है। अभी देखो साहब, वो सामने से जो तीसरा झाड़ दिखता है ना, उसी वक्त सिग्नल की लाल बत्ती देखकर ड्राइवर ने टैक्सी रुका दी। मुसाफिर ने टैक्सी के बाहर नजर दौड़ाई। पड़ोस में एक दूसरी टैक्सी से एक बूढ़ा शख्स उतर रहा था। एक मोटरसाइकिल उसे छूकर आगे बढ़ गई। मुसाफिर ने हरे रंग की मीनार मस्जिद से आगे नजर दौड़ाई और मस्जिद से लगी दुकानों से उठती मिठाइयों और खस्ता नान खताइयों की खुशबू धीरे से अपनी सांसों में उतार ली। हाँ, उतनी दूर जाना पड़ता है पानी लाने को, ड्राइवर ने सांस लेकर कहा। रात को इतना थक कर आता है, फिर सुबह को पानी भरने का ड्यूटी। बच्चा लोग को बोलता है तो बोलता है पप्पा, हम लोग को शर्म आता है। मैं बोलता हूँ तुम लोग नहाने को शर्म नहीं आता है, पानी भरने को शर्म आता है। अब मैं तुम लोगों का बाप रहकर मेरे को शर्म नहीं आता है, तो तुम लोग को काय को शर्म आता है? तो बोलता है पप्पा तुमको चलता है, हम लोग को नहीं चलता। बोलो अभी क्या बोलने का। चल 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 चल, मुसाफिर ने अफसोस किया, इतनी मेहनत अपन काहे को करता है? इसीलिए ना कि बच्चा लोग अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, अपना नहीं तो इन लोगों का जिंदगी बन जाए, है ना साहब? हाँ सच है, मुसाफिर ने सर हिलाया। पता नहीं क्यों ड्राइवर को महसूस हुआ कि उसकी आंखों में पानी भर आया है। रोज रात को 11:30 बजे घर जाता है तो औरत बॉम्ब मारता है कि हमको टाइम नहीं देने देता है, खाली पैसे के पीछे भागता है। क्या बोलेगा साहब? मुसाफिर खामोश रहा। टैक्सी ड्राइवर को लगा कि वो शायद उसके दर्द में अपना दर्द महसूस करने लगा है। कल रात तो ऐसा हुआ कि 11:30 बजे घर पहुंचा, औरत खाना गर्म करने को गई तो अपन सो गया, बिना खाए पिए ही सो गया। सीधा सुबह को उठा, ओह अच्छा, मुझे मनीष मार्केट के सामने उतार देना। मुसाफिर ने यकलख्त कहा तो ड्राइवर को लगा जैसे कि शायद उसका दर्द पूरी तरह महसूस करने से पहले ही मुसाफिर की मंजिल आ गई हो। ठीक है साहब। ड्राइवर अपनी धुन और अपनी जिंदगी से जैसे बाहर आ गया। एक लम्हे के लिए ख्याल जरूर उसके जहन से गुजर गया, वैसे भी मेरी जिंदगी से अपनी जिंदगी का मुकाबला करने में मुसाफिर का ही नुकसान है। उसने सोचा, मीटर कितना हुआ? 65 रुपए साहब। उसने बिल्कुल टैक्सी ड्राइवर के अंदाज में जवाब दिया। ये लो। मुसाफिर बगैर एक सेकंड रुके तेजी से वहां से निकलकर भीड़ में खो गया। टैक्सी ड्राइवर ने भी मुसाफिर की तरफ पलटे बगैर मीटर सीधा किया और दाएं तरफ परिंदों और जानवरों के मार्केट की तरफ देखने लगा। पिंजरों में फड़फड़ाते तोतों और सलाखों में की तरफ लपकते बंदरों को देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। गाम देवी चलोगे? बगैर आस्तीन की छोटी शर्ट और जीन्स पैंट में मलबूस एक नाजुक अंदाम ने अपनी हैरान आंखों से बाएं विंडो में झांक कर पूछा, और टैक्सी ड्राइवर ने कोई जवाब दिए बगैर मीटर गिरा दिया। शुक्रिया।